ओके, वेरी गुड। तो एक आध मिनट वेट करते हैं, बाकी सब ज्वाइन कर जाएं। 18 लोग होने चाहिए। इन द मीन टाइम एनी क्वेश्चन किसी को पूछना हो? Sir, can you please repeat that delivery volume example you have shown in the last thing, sir, UPL? How to work with the delivery volume breakouts? How Uh, to what? oh, the, when delivery volume breakouts happen, how should we assess that thing? Actually, Oh, my okay, network was break. okay, Yes. okay, fine, fine. ओके, हाँ, मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है नीना जी। ऑप्शन सेल करने के लिए पूरा मार्क टू मार्केट चाहिए होता है उसके लिए। तभी मैं जो न्यू कमर्स हैं उनको ज्यादा बाई पे फोकस करने को बोलता हूँ, बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए, रिस्क भी कम है, सारी चीजें अपने फेवर में होती है। बस फर्क ये होता है कि मार्केट में क्या है ना कि मतलब मिसगाइड करने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे आपको। तो वो हमेशा आपको ये कहेंगे कि बाइंग में नुकसान होता है, तो आपको लगेगा कि अरे यार बाई नहीं करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, अगर आपको ठीक से एसेस करना आता है तो आपको बाइंग में कोई परेशानी नहीं होगी। बल्कि मैं उल्टा कहता हूँ कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद करना। क्योंकि उसमें अंडरराइटर्स ज्यादा होते हैं, तो अ, अ, उस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेना ज्यादा जरूरी होता है। मतलब मुझे हमेशा ऑप्शन सेलिंग ज्यादा मुश्किल लगता है और ऑप्शंस बाइंग हमेशा ज्यादा आसान लगता है। For index options, how do we consider the volume part, or we ignore that? हाँ, I'll come to index also. Okay. Okay. Can you see this screen? NSC. Yes, yes, sir. Okay. So how to assess, right? So what you do is when you look at a breakout, okay, see there is a breakout which has happened over here. Okay, there is a breakout, almost double breakout. Okay, so you will look at it on the next day when the volume has reduced. If the volume further increases, just leave it. Wait for the time when the delivery quantity reduces. When the delivery quantity reduces, it means that the selling has reduced in the market. And if the selling has reduced in the market, that is going to give you a true picture of whether there is a demand or whether there is supply. Now, say for example, if you look at this day, the volume increased, the price also increased. Now, this has two meanings. One, the price really wants to go up, or the second meaning is that since the price went up, people exited. So I need to understand that which one is true. Is it the first one that is true, that the price really wants to go up and there is demand, or is it because the price went up, people exited, people sold off? So is the demand increasing or is the supply increasing? So on the next day, or say whenever the volume reduces, see this day the volume has reduced, I will see which side is the price going. The price is reducing, which means there is supply, there's no demand, there's supply in this. Now, if there is supply in this, then the next time the volume increases, breaks out, the price should start going down. Okay. Now, over here, see, again, there is a breakout. Right? The next day, when the volume reduces, the price again goes down. Right? Now, if the price is going down,
it confirms my hypothesis that what the stock is getting bearish. Okay. Okay, sir. Okay. All right. Okay. So let's continue now. तो फ्रेंड्स ब्रेक से पहले मैंने बोला था कि सब पे फोकस नहीं करना है, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स, स्लोली ग्रेजुअली। किसी कंपनी में ज्वाइन करने के अगले दिन सोचते हो प्रमोशन मिल जाए, नहीं होता ना। 2 साल 3 साल डट के काम करना पड़ता है, अच्छे से काम करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के मैनेजमेंट को दिखता है कि अरे इस लड़के में या इस लड़की में रियली पोटेंशियल है और ये हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले सकता है। ठीक है, तो एक रात में तो कहीं कुछ नहीं होता। ओके, तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है। देखो मेरी तरफ से तो ये है कि आप किसी भी ट्रेड को किसी भी स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको काम आता है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर आप किसी भी स्टॉक को उठा लोगे उससे ट्रेड कर सकते हो। पर शुरुआती दिन में फोकस एरियाज आपके कहां पे होने चाहिए वो जान लेना थोड़ा सा जरूरी है। ओके, अब मान लीजिए इसी वाले स्टॉक को ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इस स्टॉक में ये वाला वॉल्यूम दिख रहा है। मैंने क्या बोला था आपको कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरी क्वांटिटी। अभी तक हमने इन्हीं का इस्तेमाल किया है, राइट? इसके बाहर नहीं गए हम लोग। मैंने एक बारी भी नहीं बोला है कि यार No, I said. Can you hear me now? No, I can hear. Okay. Just give me a second. Let me just reset the bandwidth. 1 second. Oh, okay. Okay. Can you hear me now? Okay. Very Yes, sir. तो फ्रेंड्स आप लोग अपने ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स यूज करते हो? मैकडी, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, ये वो करते तो होगे सब। ओके, तो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, इनमें ये 2 पैरामीटर्स जो होते हैं वो इंडिकेटर पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम और डिलीवरेबल क्वांटिटी, ये जो 2 पैरामीटर्स हैं, ये 2 पैरामीटर्स जो कि चार्ट के बाहर होते हैं। ठीक है, ये आपके इंडिकेटर्स होंगे। अंडरस्टूड? जिस तरह से आप मैकडी लगाते हो या मान लो कुछ भी लगाते हो, वो क्या सब होता है, ट्रू, रेंज और भगवान को मालूम वो क्या, RSI, स्टोकेस्टिक्स और गॉड नोज व्हाट ऑल। ओके, तो
जैसे वो इंडिकेटर्स होते हैं वो चार्ट के बाहर होते हैं हमेशा, ओके। उसी तरह से वॉल्यूम और डिलीवरेबल क्वांटिटी भी जो होता है वो हमेशा चार्ट के बाहर होता है, और ये तो चार्ट के मतलब बाहर भी नहीं होता है, ये तो रिपोर्ट पे होता है, मतलब ये आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के भी बाहर होता है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जो भी इंडिकेटर्स होते हैं ना वो हमेशा आपके चार्ट के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला इंडिकेटर होगा वो होगा वॉल्यूम, और जो दूसरा इंडिकेटर होगा वो होगा डिलीवरी क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस की मूवमेंट से पहले वॉल्यूम आपको बता देगा कि कुछ होने वाला है, या तो प्राइस ऊपर जाने वाला है या फिर प्राइस नीचे जाने वाला है, ओके। तो पहले प्राइस मूव नहीं करेगा, पहले ये लोग मूव करेंगे, ये आपको बताएंगे कि अब मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो इंडिकेटर्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं वॉल्यूम और डिलीवरेबल क्वांटिटी, ओके। अभिषेक, यस सर। अब ये बताओ कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो किस तरफ जाना चाहिए स्टॉक? इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है हम्म, और वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, किस तरफ जाना चाहिए स्टॉक को? डाउन। वेरी गुड। तो इतना सिंपल होता है गाइस, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है, अभी जो मैंने फर्स्ट हाफ में आप लोगों को ये ऑलमोस्ट 3 घंटे में सिखाया कि ट्रेंड कैसे पता लगता है, ठीक है। तो जब आपको ट्रेंड पता लग जाए और आपको ये समझ में आ चुका है कि अब ये अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर ये अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम ब्रेकआउट कर रहा है तो आपके दिमाग में क्या चलेगा कि प्राइस जो है वो ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए, जाना चाहिए। उसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश हो चुका है और वॉल्यूम ब्रेकआउट आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि प्राइस जो है वो फर्दर फॉल करेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशंस बनती हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि किस तरफ को ट्रेड करना है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड करना है आपको। तो अगर ऊपर जाएगा तो कॉल्स को बाई करना है और पुट्स को सेल करना है, और अगर वो नीचे जा रहा है तो पुट्स को बाई करना है या फिर कॉल्स को सेल करना है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इस इंडिकेटर के माध्यम से हमें कैसे अर्ली इंडिकेशंस मिल सकते हैं। हाउ कैन वी गेट अर्ली इंडिकेशंस कि नाउ द दिस इज द स्टॉक इन विच आई नीड टू फोकस, ओके, आई नीड टू असेस ट्रेंड्स, और मेरे इस महीने के ये जो 4 या 5 स्टॉक्स हैं वो ये वाले होने चाहिए, और अब मुझे इसमें काम करना है, ठीक है। अब उसके 2 तरीके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और आप इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ दिस इज द रिपोर्ट, राइट, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पे क्वांटिटी अपने को नजर आ रहा है कि ट्रेडिंग का वॉल्यूम कितना चल रहा है, ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल वॉल्यूम कितना चल रहा है, ठीक है। अब ये 1 जून है और ये 29 जून है, ठीक है, ये 1 महीने का है डेटा। अब देखते हैं इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे आया है। 11 लाख 27 लाख 27 lakhs 2714, सो दिस इज आया 30 lakhs, ओके, 36, ओके। तो इस रिपोर्ट को देख करके ऐसा लग रहा है कि दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, 36,66,000 और वट एवर, ठीक है। अब 36 lakhs आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, यस और नो, ऑल ऑफ यू?
वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया है, डाउन ट्रेंड 577 प्राइस चल रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 610 roughly is the high, 577 is the low, roughly, right? Okay. Now volume breakout has happened this day. Do you see that the opening price is 581? It is sideways, right? किस तरफ को ट्रेंड बना रहा है? हायर हाई बना रहा है या हायर लो, मतलब लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है या हायर हाईज हायर लोज बना रहा है ब्रेकआउट के बाद? यहां पे क्या बनाया इसने? 336.30, 598.05। जिस दिन ब्रेकआउट हुआ है उस दिन हायर हाई बनाया है या लोअर हाई लोअर लो बनाया? ठीक है, उसके अगले दिन भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, देख रहे हो हालात, देख रहे हो? उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, अब मुझे ये बताओ कि ये जो 36 लाख का वॉल्यूम था यहाँ पे 28 जून को आया था, और ये 36 लाख का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था, 38 लाख पे हो गया था, तो क्या इसने इंडिकेटर का काम किया आपको बताने के लिए कि अब प्राइस गिरने वाला है? ठीक है, तो जिस तरह से मैगडी वैगडी ये सब यूज करते थे आप, आपको वॉल्यूम को उस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। ठीक है, 36 लाख वॉल्यूम, 38 लाख वॉल्यूम, ठीक है। ये प्राइस कहां पे है? 625 पे हाई है, 604.30 पे लो है। जिस दिन ये ब्रेकआउट हो रहा है उस दिन का हाई कितना है? 610 एंड 577.65, ठीक है। इस वाले कैंडल को और इस वाले कैंडल को अगर कंपेयर करो तो इसमें और इसके बीच में हायर हाई हायर लो बना है या हायर लोअर लो लोअर हाई बना है इन 2 दिन में? केवल इसको देखो, ओनली दिस वन which was the highest volume and this one which is the breakout volume. Which side is the thing? Is it forming a lower low lower high or higher high higher lows? लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, तो क्या है? डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है? ठीक है, मुश्किल है, टफ है क्या? ठीक है, किसी और स्टॉक का नाम लो। वेदांता। ओके, जून में देखते हैं। 2 crores, 2 crore 96, 4 crores, 4 crore, 4 crore is the highest volume. ये वॉल्यूम अभी तक ब्रेकआउट हुआ है? ठीक है, तो अभी ट्रेड पक्की नहीं है, अभी फोकस नहीं करना है वेदांता पे, ठीक है।
समझ गए? अभी फोकस नहीं आया वेदांता में। इस बार एक भी वीडियो देखा है ऑफ लेटली कि वेदांता को मैं ट्रेड कर रहा हूं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जून में 1 करोड़, ये भी 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख हाईएस्ट लग रहा है मुझे। हाँ, 1 करोड़ 20 लाख है। 1 करोड़ 15 लाख, 3 करोड़ 32 लाख ब्रेकआउट है। आया ना? ठीक है, अब देखते हैं 2 करोड़ 20 लाख जिस दिन था, मतलब ये वाला, सॉरी 1 करोड़ कुछ था ना वहां, 1 करोड़ 28 लाख। इस दिन का प्राइस कहां था? 255 247, 255 247 कहां पे है प्राइस? $214 $194। क्या लगता है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में? ठीक है, गिरने के चांसेस हैं या ऊपर जाने के चांसेस हैं? ठीक है, टाटा स्टील 92 90 1 करोड़ 5 lakhs। तो अपने को 1 करोड़ 5 lakhs का हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे 2 जुलाई, पहले दिन। ठीक है, अब देखते हैं 563 547। ठीक है, ब्रेकआउट 6347, ब्रेकआउट हुआ 8656। क्या लग रहा है? अप ट्रेंड, वेरी गुड, फाइन। सो इट शुड फॉल नाउ, सॉरी इट शुड गो अप नाउ। ठीक है, अगले दिन फिर ब्रेकआउट 572 553। ठीक है, अभी भी क्या लग रहा है? अप ट्रेंड, शुड गो अप, यस और नो? राइट, Yes, sir. अब देखते हैं फाइव 111। सो 1 करोड़ 5 लाख से ऊपर है, अगेन अ ब्रेकआउट 559 517। 5917 क्या लग रहा है? डाउन ट्रेंड, अब देखिए ओके 517। so this is the place, started slipping down from here, started going down, right? Yes or no? Okay, now the important thing to notice why I opened Tata Steel is this was the important day, ये वाला reference point, correct?
ठीक है, प्राइस था 563.45, 547.30. The first breakout happened here on 2nd of July. The price is lot higher. Yes or no? ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि वी आर बाइंग कॉल्स ओवर हियर. क्योंकि ब्रेकआउट होने के तो ऊपर को चांसेस है ना. इट शुड गो टू द लेवल ऑफ 600, 615 और वट एवर. ठीक है, ऊपर जाने के चांसेस हैं. व्हाट यू विल डू इज, से यू बॉट 600 कॉल. ओके, यहां पे हाई कितना है, 563. Okay, so where is the high? 563. You can also buy the puts over here. Okay, अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं कि हम कॉल को बाई करने वाले हैं 610 के लेवल पे. 610 का लेवल इसलिए क्योंकि मैं इस मंथ का हाई रफली देख रहा हूं, तो मुझे ये लास्ट हाई जो है वो 608 के आसपास दिख रहा है. तो आई विल ट्राई टू गन फॉर अ कॉल ऑफ 610. ओके, द सेम वे this high is 563. So 560 level put is also important. After this breakout has happened, this breakout happened over here on 2nd of July. This place, okay. 157 पे जब ब्रेकआउट हो गया तो अपने को पता चल गया उस समय पे प्राइस बहुत ऊपर है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है. ठीक है, 586.50 पे चल रहा है हाई, इस वाली जगह पे चल रहा है. ठीक है, तो 560 का लेवल है और 610 का लेवल है. 610, 560. We are trading in July. Stock options, Tata Steel, (2018) July expiry, calls, get it. 2 तारीख को हुआ था ब्रेकआउट, 2nd of July. Sorry, 20 होगा, 620 लेवल होगा. ठीक है, इसमें 20 रुपीज के लेवल्स हैं. ओके, 2nd of July यहां पे देखिएगा इस वाली जगह पे 660 रुपए का है हाई. यस और नो? 6 रुपए 60 पैसे का हाई है, 6 रुपीज 60 पैसा. It should break out this level and go up, right? Yes or no? Did it ever break that? ब्रेक हुआ? नहीं हुआ. चलो कोई बात नहीं. सर एक डाउट था सर. सर जब वो ब्रेकआउट हुआ ना सर, अगले दिन
जब वॉल्यूम गिरा तो प्राइस गिर गया सर, तो हम कॉल क्यों बाय करेंगे सर? नहीं 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 नहीं, देखो हाइपोथेसिस बनाना है, ठीक है गलती सर। तो होगा ना। हाँ सर। मैं गलती को सिखा रहा हूं कि आप ओके गलती सर। को कैसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है सर, ठीक है। क्योंकि देखो इट इज स्टॉक मार्केट, इसमें इल्यूजन भी होगा। हाँ सर। ठीक है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। ओके सर। ठीक है, अब टाटा स्टील उठा लिया, अब एक्सपेक्टेशन क्या है, ऊपर जाएगा ना। अपने को दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है, प्राइस तो ऊपर ही है। अब देखते हैं, जुलाई, ठीक है, अब पुट पे जाते हैं। वो जो हाई वाला लेवल था वो 560 का था, 560 का। दो तारीख को ब्रेकआउट हुआ, प्राइस कुछ ऐसा था 28 रुपीज 70 पैसा। तो ऐसा लग रहा है ना कि अरे यार ये तो नीचे टूट रहा है, राइट, कि ये नीचे की तरफ टूटने की कोशिश कर रहा है। अब देखिएगा, ऊपर का ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं उसके बाद। अब यहां पे देखिएगा, एट दिस प्लेस डिड इट गिव यू अ बियरिश दिस थिंग कंफर्मेशन, आया ना? ठीक है, अब देखते हैं 517 का लो दिख रहा है, पिछला कोई लो है नहीं। ठीक है, तो अपने को इस केस में ये देखना पड़ेगा कि इस दिन पे, नाउ व्हाट वाज द लो प्राइस 517, राइट? सो व्हाट आर द लेवल्स बिलो दैट? द लेवल्स बिलो दैट आर 500, 480, right, 460. Yes or no? Every 20 rupees there is a strike price. Okay? अब हम ये देखेंगे, क्योंकि हमको ये पता नहीं लग रहा कि पिछला लो कहां पे है, बिकॉज ऑफ लेटली उतना लो बना नहीं है कि हम वहां से उसको गेस कर सकें। तो अब हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि वो कौन से तारीख को अपने को समझ में आया था। ये अपने को समझ में आया था 16 जुलाई को। ठीक है, 16 जुलाई को अपने को समझ में आया था कि एक डाउन ट्रेंड सा बन रहा है इसमें, अब ये नीचे गिरना चाहिए, करेक्ट, अब ये नीचे स्लाइड होना चाहिए। तो लेवल्स आर 500, 480 एंड 460। तो पुट 500 16 जुलाई, यहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, यस और नो? हाँ या ना? ओके, अब इसके नीचे वाला लेवल वुड बी 480। 16 जुलाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, ओके। अगला लेवल कौन सा है? 460, 460। 16 जुलाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? 440। 16 जुलाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, 420। 16 जुलाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। ये जो सीक्वेंस मैंने चेक किया, ये आपके समझ में आया?
कि मैंने एक एक करके स्ट्राइक प्राइस को खोला, ओपन किया और ये चेक किया कि किस किस में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है, दिस कॉलम इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये देखिए चेंज इन ओआई। ठीक है, ओके। क्या आपको दिख रहा है कि 420 का एक ऐसा लेवल है जहां पे कि 16 तारीख को जब ये ब्रेकआउट हुआ था और बियरिशनेस हमको दिखा था, on that 16th of July, this was the place, this area where it did not build up open interest. Yes or no? Guys, yes or no? Okay. इसका मतलब ये होता है कि प्राइस को अगर नीचे गिरना है तो वो कहां तक गिर सकता है? वो 440 लेवल तक गिर सकता है, जहां पे कि वो लास्ट लेवल था जहां पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था। 440 का जो लेवल था वो आखिरी लेवल था जहां पे कि ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हुआ था। ठीक है, वो एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है। अब ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये कितने का है? 40. ₹1.20, ₹1.20, right? Now if it has to go down, it will break ₹1.20. Did it Yes, break sir. here? Yes, sir. Did it? So if you bought ₹1.20, what is your exit? ₹2.40. Did you get your price? In 4 days. Okay. Now say for example, this day you will not buy because ₹1.20 is not broken, right? See, it's not broken. This day also opening weak, but see, it broke. You see this? It broke, not even broke, it closed. You bought ₹1.20, your exit price is ₹2.40. Did you get it the next day? Yes, sir. Yes, sir. 100% return on investment. Yes or no? Yes, sir. तो फ्रेंड्स, फंस गए थे, रीडिंग में फंस गए थे हम लोग। ठीक है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रीडिंग में फंस गए थे, जब ब्रेकआउट हो रहा था ये दिखा रहा था कि ऊपर जाएगा, इल्यूजन था ये, इट वाज इल्यूजन। इल्यूजन को ओवरकम कैसे किया? डेरिवेटिव्स का सबसे फैंटास्टिक तरीका ये होता है कि डेरिवेटिव्स में, मतलब जो कॉल्स एंड पुट्स हैं, वो अपने आप को रीसेट करते हैं। ठीक है, द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट कॉल्स एंड पुट्स इज कि आपने यहां पे देखा था कि जब हम बाई करने की कोशिश करना चाह रहे थे ऊपर की तरफ, तो हमारा ब्रेकआउट था 2 जुलाई को, राइट? जब वो 2 जुलाई को ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। मतलब जो हाई प्राइस बना, दैट हाई प्राइस वाज नेवर ब्रोकन। ओके, पर मैंने आपको क्या बोला कि आपको किस पे फोकस करना है? जहां पे कि वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है। तो टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए था जिसमें टाइम लगाना है। अब टाइम लगा रहा हूं तो भैया पैसा चाहिए ना, मुनाफा चाहिए। आई वांट प्रॉफिट, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? यहां पे आकर के मुझे दिखा कि हाँ भाई इसमें बियरिशनेस बन रहा है, पर मुझे इसका लो मिल ही नहीं रहा कहीं पे। अब आपने तरीका देखा कैसे लो निकाला मैंने, कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा होना चाहिए? 500 का होना चाहिए, 480 का होना चाहिए, 460 का होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? मेरे को यह समझ में आया कि 440 का होना चाहिए। 440 को नेक्स्ट डे पे, मतलब मॉनिटरिंग पे लगाया, नेक्स्ट डे पे तो नहीं हुआ, उसके अगले दिन पे ब्रेकआउट हुआ, पोजीशन बनाया, उसके अगले दिन मिल गया 100% रिटर्न ऑन कैपिटल। मुश्किल था? क्या हो गया फ्रेंड्स? आर यू गाइस स्टिल अवेक और? ओके।
सो मुश्किल तो नहीं है। किसी ने मुझसे स्ट्राइक प्राइस का क्वेश्चन पूछा था कि विच स्ट्राइक प्राइस, आप समझ गए विच स्ट्राइक प्राइस? Now do you also know the method how to select a strike price? हाँ, 18th of July. 18th of July you can enter. Okay, even if you have missed this, not to worry, next day also you can enter. इस दिन पे भी enter कर सकते हो। ठीक है। दूसरा चीज मैं क्या बोलता हूं, रिस्क को कम से कम रखना है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। रिस्क को कैसे मैंने मिनिमाइज किया, अब देखो पुट को अगर मैं 500 के लेवल पे खरीद लेता, चला तो शायद ये भी जाता डबल, पर अगर मैं 500 के प्राइस पे पुट को खरीद लेता तो मेरा जो रिस्क होता वो पर स्टॉक 9 रुपी 75 पैसा होता। मानते हो? ठीक है। और यहां पे देखो वो डबल भी नहीं हुआ है। और जब मैंने इस तरीके से प्रॉपरली दिमाग को ठंडा रख के स्ट्राइक प्राइस को ढूंढा, थोड़ा मेहनत लगा, इधर उधर क्लिक करना पड़ा, ठीक है, तो आप ये देखो 1 रुपया 20 पैसे पे घुसा, 2 रुपया 40 पैसे पे निकल सब पाया ना, और मेरा रिस्क कितना था, 1 रुपी 20 पैसा पर स्टॉक। सो इज इट अ लेसर रिस्क कंपेयर टू 9 रुपी 75 पैसा? Yes, sir. ठीक है। ऑप्शन इस तरीके से करना है। So I have a question here. हाँ बोलो अभिषेक। अच्छा, so जो फर्स्ट ब्रेकआउट था that was on 2nd of July. ठीक है। फर्स्ट जो ब्रेकआउट था 2nd of July, वहां पे हमने ट्रेड को एज पर यानी जो प्राइस एक्शन था वो हमें लॉन्ग जाना था, बट हमने उसको रिजेक्ट इसलिए किया बिकॉज जब हमने वहां पे ऑप्शन के वहां पे जब प्राइस चेक कर रहे थे, द हाईएस्ट वाज 6.6 rupees and 60 paisa. We waited for that to cross breakout in that price. It didn't happen, so we rejected that and then waited for a next breakout. यही था ना कंक्लूजन? Yes. अच्छा अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन है कि हमने ये कौन से दिन में डिसाइड किया कि which strike price we have to decide for, like will it be 480, 460, 450? On which day did we decide that? 16th of July. 16th of July. ठीक है, ठीक है, yeah, clear now. Thank you. Yeah. Okay, very good. अब इंडेक्स की बात करते हैं थोड़ा। अच्छा, स्टॉक्स में कोई और क्वेश्चन पूछना है आपको मुझसे? Sir, can we have one more example, sir? Let's take Coal India. let's leave metals now. Let's pick the other sector, pharma. Sun Pharma. Sun Pharma? Okay, let's do Sun Pharma. Okay, so Sun Pharma, 2 crore 92 lakhs. Is there a breakout? Okay, so let's leave it. Dr. Reddy,
14 lakhs, 20, 25, 44. So 44 seems to be the biggest one. Is there a breakout? Cipla. $46 lakhs, 71 lakhs, 91 lakhs. Okay, so 91 lakh seems to be the biggest one. 20th of June. Is there a breakout? No. Lupin. $89. So 89 seems to be the biggest one. Is there a breakout? No. Okay. So, Uday, do you now Sir. understand that when you were studying the charts on this Friday as part of your PTMP exercise, why did you find the pharma sector turn sideways? Yes, sir. There is no volume breakouts. Exactly. Okay. So everything is predictable in this market. Okay. Now let's look at Hinpetro. Hindustan Petroleum seems 1 crore 50 lakh sort, right? 1 crore 50 lakh. It went up to 1 crore 41 lakhs. Didn't work out. Then collapsed. Okay, fine. BPCL. $78, 72. Okay, 1 crore 33. So 1 crore 33. No breakout, right? No breakout. IOC. One crore 31, 1 crore 68, 2 crores. 1 crore 68, 2 crores, right? So there's a breakout. Sir. 168, 160, 150. 164, 156. So which side it is showing it wants to go? Up or down? Up, right? So this wants to go up. 164, 156. So let's see. 175. So let's look at 180 levels of IOC. Okay, now July 12th, right? Which one did it break out? 128, 168. Okay. Now 12th of July is our baseline date. July 12th, the high is how much? 1 rupee 55 paisa. Right? Did it break out? No. Okay. So it's still not working out. Okay. Guys, just give me 1 second. Huh?